ठीक है. Sir, team mode. You want to ask anything? No. Otherwise, we are good. No. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. So that was Sky. It's the limit, right? Okay. It actually represent our motto for today. Yes, it is. It did actually. So, what's happening now? You seem tired. In fact, you're quite tired. Actually, it's been a very hectic time day. Yes, it was, but everything was on the go, and It's actually the people who are working at the back. yes, end, right? exactly. So let's talk We should to probably the ask the judges. judges. Yes, how do they I'm feel? feeling. I mean, I think you might be tired. You're all good? Tea, I guess. Okay. Okay, that's So. great. So we should probably go to our next team. Okay, and who is that? Our next team is actually Engineers DTE. So we Okay. should probably call them. So we're gonna welcome them on the stage, and best of luck to this team. Here you go, and best of luck. इधर पीछे हो जा सनावर. Bismillahirrahmanirrahim. Delta board 3D printer. Our project a Delta board 3D printer using Delta board technique. 3D printer printing. 3D printing is used to create three-dimensional object of any orientation and any shape of the objects. And we use to create three-dimensional object using additive manufacturing technique. Additive manufacturing technique is a technique in which we fuse the layers of the material together from ground to up. In this technique is more efficient as compared to subtractive technique. Subtractive technique is a technique in which we create the three-dimensional objects by put the block of the solid material and cut with the blades and the lasers. In this technique, most of the resources and the material is waste. Therefore, we choose additive manufacturing technique. Our Delta board 3D printer use additive manufacturing technique. Yes, sir. हमने खुद किया सर. इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिज़ाइन किया था ऑटोकैड पे. उसके बाद रोड्स वगैरह बाजार से खरीदे हैं. असेंबल खुद किया है मतलब. असेंबल. यस. No, sir. This is not something which is available online. Yes, sir. Correct? What is your contribution to the whole thing other than कि मैंने parts free पे assemble कर दिया? Yes, sir. सर इसका डिज़ाइन किया है ना हमने, खुद डिज़ाइन किया है. ये जो ये custom designed है या ये assembled है? सर हमने खुद डिज़ाइन किया है, फिर उसके बाद इसकी असेंबली खुद बनवाई है बाजार से. यस सर, खुद हमने बनाई है. यस सर, हमने खुद बनवाई है. ठीक. ब्लॉक डायग्राम प्रॉब्लम सर, हम जो थे इसको कॉस्ट एफिशिएंट बनाना चाह रहे थे. यानी कि जो बाहर पहली बात तो जो है डेल्टा बोर्ड 3D प्रिंटर पाकिस्तान में इतने अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड ही हैं. हाँ, नॉर्मल जो लैक्स में है. 2 लाख नॉर्मल कॉस्ट. हम इसको कॉस्ट एफिशिएंट बना रहे हैं तो इसकी कॉस्ट कम कर रहे हैं. ये हमारा मेन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था इसका. Are we talking to CS students or mechanical? इलेक्ट्रिकल. Electrical students. ठीक है. और इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो बता सकते हैं? यस सर, ऑर्डिनो.
आर्डिनो यूज़ किया माइक्रो कंट्रोलर। और सर नीचे लगा हुआ है सर, अभी ज़रा थोड़ा सा। Sorry, but we have to go through this. Do you want to operate it? I don't. वी कैन Do you have a video? Right? वीडियो दिखा, वीडियो लगा दे उनको, कहीं वीडियो दी है उनको। वो भी दिखा दे सर को ये। सर वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही। Yes. सर ये तो ये किस साइड पे प्रोजेक्ट है? सॉरी किस साइड पे प्रोजेक्ट है? सर 9 इंचेस तो 9 इंचेस 9 inches का मतलब the diameter? डायमीटर इसका है 230 मिलीमीटर, 230 मिलीमीटर। मिलीमीटर mm क्या है इधर इसका कोड तो लिखा नहीं पड़ा हुआ है, it is readily available online. यस, कोड तो अवेलेबल था, लेकिन उसमें अपने प्रोजेक्ट अपने डिज़ाइन के मुताबिक सारी वो करना। चेंजिंग की है सर फॉर एग्जांपल इसका साइज हमारा वो जो कोड था उसमें डिफरेंट था साइज ऑब्जेक्ट्स साइज और और डायमीटर वगैरह जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है, इसकी जो मोशन है मोटर इसकी मेक फाइल है वो कौन सी दे देते हैं जो जी सर जी कोड फाइल जी कोड फाइल। and what is the cost that you mentioned of you assembling this? सर 50 to 60,000। जिसमें इसको मार्केट टारगेट कर रहे हो? यस सर। मार्केट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है सर ये। कंस्ट्रक्शन अच्छा कंस्ट्रक्शन एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ किस कॉस्ट पे आप इसको मार्केट कर रहे हो या कर रहे हो कि नहीं, समथिंग लाइक दिस। सर हमारा तकरीबन मार्केट प्लान for this. यस यस सर फर्स्ट टाइम जो हमने किया है तो जाहिर बात है कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो तकरीबन 50 के करीब 50 to 60 के करीब आई है, तो 80 में हम सेल आउट करने चाहेंगे। ठीक है, तो इस सर प्राइस उतनी रहेगी, लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल सप्लाई हमारी 2 बार ख़राब हो गई थी, यानी जल गई थी, वो कॉस्ट भी हमने इंक्लूड की हुई है ना प्रोजेक्ट में। इसी तरह असेंबल ये स्ट्रक्चर असेंबलिंग इसकी थी सर 15,000 थी तकरीबन। यस सर। सर ये Some of the particulars, the thing that heats it, हीट यस सर, ये कौन सा है? हीट बेड टेम्परेचर। और did you suffer any losses while creation of this? नो सर लॉसेस। It's working fine. यस सर। और ये कितने वॉट्स पे चलता है? सर ये वैसे ऑपरेट जो कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट वो 12 वोल्ट पे कर रहा है, और सप्लाई जो है वो 220। वॉट्स कितने मॉडल प्रिंट करने के बाद देखा कि वो हीट अप हो जाता है and cannot do anymore. It is usually relevant to this thing. Have you done any conductive printing? कंजेक्टिव यस सर की है सर। अभी जो हमने ड्राइवर यूज़ किया है ना वो हीट अप हो जाते हैं तकरीबन 3-4 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ये जैसे अभी आपको दिखाए हैं। यस सर वो फर्स्ट टाइम था ना, तो फिर वो अच्छा वो बोला। ठीक है। अच्छा, इसका मार्केट प्लान है क्या? बस सिर्फ वर्बली मुझे बताओ।
सर हमने इसको 80 के करीब मार्केट में सेल आउट करना। वैसे क्या है, हाउ वुड यू मार्केट दिस थिंग? सर किसी के साथ एसोसिएट होकर करेंगे, किसी के साथ अप्रोच किया भी आपने? यस सर, वो हैं वर्कशॉप है मेरे कज़न की ना, CNC पे वो काम करते हैं। तो उनकी कितने ट्रैफिक ऑडियंस है जिसको वो कैटर कर रहे होते हैं? आपको लगता है कि अगर उनके पास रखेंगे तो ये बिक जाएंगे? यस सर, है काफ़ी उनकी यानी कि लिंक्स हैं मार्केट में। अच्छा, हाँ जी। आपने कोई रिसर्च पहले से इसके ऊपर प्लान पे नहीं की कैसे करेंगे? Just one of the things I want to tell you, couple of the folks from Microsoft is sitting here. यस सर। I've seen this project twice in past 6 years. The same idea that it is personally assembled. They said they made some tweaks and all that. और उनका project model थोड़ा सा different है. You just have to look for any ठीक है, you assembled it and I give you the due accreditation for that. Despite that, मैं local वाले को discussion मज़ीद करना चाह रहा हूँ. यस Potentially it's not the right time. जो मार्केट प्लान है ना उसी के ऊपर आप चलो। फॉर एग्जांपल देयर इज अ गाय नेम फरूख, ही इज इन कराची। यस सर। Print 3D Pakistan, he was the first one to run the Facebook page. You can go and search it out. Print 3D Yes, sir. Pakistan. And he was manufacturing these things, and then he was selling the 3D printing objects. He was marketing them. So that Yeah. was a sound marketing strategy. This one, the message I'm releasing is not a feasible thing because I will not buy it from you because मुझे आप इसकी वारंटी नहीं देंगे. और that whole thing is left out. सेशन में देख लीजिएगा. I don't think there is anything else I want to talk about if these girls want to. Thank you. Thank you. Thank you so When much, he boys. did that, That was an amazing project. Now, It was a very good project, right? yes, it was. So what do you have further, right? What is the next team? So we have learners. What's IM? It's I am learner. No, it's learners. It's I am learners, right? No, you're gonna just see that it is learners. So coming up next is learners from Punjab University. Please give them a huge round of applause. Please welcome the team learners from Punjab University. There you Over to go. guys, and best of luck with the project. I know you'll do great. In second, laser on full time program. Hello everyone, I am Mohammad Talha. I am Munib. And I'm Ansha Nawaz. And together we are learners. So हमारा प्रोजेक्ट है Securify. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर जगह पर आजकल CCTV कैमरास एंड सर्विलेंस सिस्टम्स का दौर है. हर जगह पर सर्विलेंस सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, आइदर फॉर सिक्योरिटी पर्पस, आइदर फॉर मॉनिटरिंग पर्पस. हर एडमिन चाहता है कि वो अपनी तमाम हैपनिंग्स को, अपनी अंडर होने वाली तमाम हैपनिंग्स को देख सके कि किस वक्त क्या हो रहा है और किस तरह किया जा रहा है. सो एक इनकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सर्विलेंस सिस्टम्स को यूज़ करने के, जैसे कि हर जगह पर एप्लीकेबल हैं. और बड़ी अच्छी बात है कि सिक्योरिटी गार्ड्स, नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी गार्ड्स को कम कर देते हैं. आइदर कि हम जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बिठाएं, उसके अलावा हम जस्ट कैमरा ऑपरेटर्स को बिठा देते हैं एंड वहाँ से सारी की सारी हैपनिंग्स को मॉनिटर करते रहते हैं और वहाँ से एविडेंस को गैदर करते रहते हैं. इसके थ्रू हम ईगल आई रख सकते हैं अपनी तमाम हैपनिंग्स पर और तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं रिमोटली. सो वन ऑफ द की फीचर ऑफ दीज सर्विलेंस सिस्टम्स इज एविडेंस गैदरिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेनिंग. एक्चुअली जो भी कुछ हैपनिंग हो जाती है उसके बाद में हमारे पास रिकॉर्ड गैदरिंग और एविडेंस गैदरिंग के लिए ये सर्विलेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा काम आते हैं, CCTV कैमराज वगैरह. बिसाइड दीज बेनिफिट्स इनके कुछ ना कुछ सम डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द सर्विलेंस सिस्टम्स जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर अपनी स्ट्रीम्स को भेज रहे होते हैं और वहाँ से कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो रही है या आपके मोबाइल पर स्ट्रीम आ रही है आपके कैमरास की. तो मेन प्रॉब्लम ये है कि तमाम की तमाम आपकी हैपनिंग्स आइदर अगर आपके CCTV कैमराज बैंक्स में लगे हुए हैं, चाहे घर में लगे हुए, चाहे ऑफिस में लगे हुए, तमाम की तमाम हैपनिंग्स एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है. या अगर किसी ना किसी तरह सर्वर पे सिक्योरिटी ब्रीचेस आ जाएं तो वो सारी की सारी आपकी तमाम हैपनिंग्स, अगर लेट्स से बैंक में आपके कैमरास लगे हुए हैं तो सारी की सारी हैपनिंग्स वो देख सकते हैं वहाँ पर.
इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि पर्सनल नेग्लिजेंस और पर्सनल बायसनेस आ सकते हैं यहाँ पर, कि जो पर्सन हमने एज अ कैमरा ऑपरेटर बिठाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस कर जाएं या कुछ ना कुछ बायसनेस आ जाए, वहाँ पर जाकर ये सिक्योरिटी, ये हमें रिकॉर्ड मेंटेनिंग या जो भी कुछ अनडिजायर्ड हैपनिंग होने वाली है, होने जा रही है, हो रही है, उसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम पकड़ नहीं सकते। सबसे मेन जो डिमेरिट है जिसको हमने फोकस किया वो ये है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उनको बाद में एविडेंस गैदर तो कर सकते हैं, लाइक अगर चोरी हुई, कुछ भी हुआ, कुछ भी अनडिजायर्ड हैपनिंग हुई, हम उसको बाद में रिकॉर्ड तो मेंटेन कर सकते हैं, हम उसके एविडेंस तो गैदर कर सकते हैं कि हाँ ऐसे हुआ, इस बंदे ने ऐसा किया, लेकिन हम रन टाइम पे नहीं पता चल सकता कि ये होने जा रहा है, ये होने लगा है और ये बंदा करने जा रहा है। तो इन सारे सिचुएशंस को देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, और उसके लिए तमाम एक हम सोल्यूशन बना रहे हैं जिसका नाम है सिक्योरिफाई। Okay. So there are so many problems that can be only solved by our product Securify. Basically Securify क्या करता है कि ये existing computers, client के existing computers, existing machines को एक server बनाता है through distributed computation, और उनको, और जिससे जो है ना थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे हो जाती है। ये मैन पावर को बिल्कुल लेस करता है। लाइक अगर हम नॉर्मल सर्विलेंस सिस्टम देखें तो उसकी स्क्रीन पे फिर भी कोई ना कोई, जैसे शॉप पे या कहीं भी, फिर भी कोई ना कोई पर्सन उसको मॉनिटर कर रहा होता है, और इसमें पर्सनल नेग्लिजेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती होती है और सिक्योरिटी ब्रीचेस बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि ये बिल्कुल क्लाइंट साइड पे होता है, क्लाइंट का डाटा क्लाइंट साइड पे रहता है, थर्ड पार्टी बिल्कुल इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इसकी थोड़ी सी वर्किंग इस तरह है कि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ये बहुत वर्जन्स प्रोवाइड करती है, iOS एंड एंड्रॉइड। उसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है और उसके बाद जो है ना उसको बहुत से सब फीचर्स दिए जाते हैं। उसमें पहला फीचर ये होता है कि वो जो है ना जितने भी उसके साइटेड कैमराज है, लाइक अगर मैं ऑफिस में हूँ, मैं बैंक में हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, तो मैंने ये देखना है कि मेरे जितने भी साइटेड कैमराज हैं उनकी मैंने रिमोटली लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है कहीं पे भी, तो उसके लिए जो है ना ये फीचर प्रोवाइड करता है और आप जितने भी कैमराज लगे हुए हैं उनकी वो लाइव स्ट्रीमिंग भेज रहा होता है। उसके अलावा ये एक्टिविटी रिकग्निशन करता है, ये ऑटोमेटिक अटेंडेंस करता है और ये पर्सन ये आइडेंटिफिकेशन करता है। बेसिकली वी आर यूजिंग डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, रिसेंटली बेस्ड एक्यूरेट एल्गोरिथम जिनको हमने खुद कस्टमाइज किया और हमने इसके अंदर बहुत सी फंक्शनैलिटीज ऐड करके इसको एक सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन बनाया जिसको कोई भी किसी भी तरह जो है ना कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके अंदर जो है ना एग्जिस्टिंग जो कैमराज हैं और कंप्यूटर्स हैं उनको जस्ट वन टैप के थ्रू जो है ना इजीली नोटिफाई एडमिनिस्ट्रेटर को किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग ऑल्सो। नाउ माई अदर मेंबर विल टेल यू अबाउट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। उसको छोड़ दें, बिकॉज यू हैव शोन सम वेरी गुड डायग्राम्स। इज देयर एनी डेमो? यस सर, हमारे पास वीडियो है। लेट्स सी वीडियो में दरअसल ये है कि हमने कैमरास अपने खुद ही यूनिवर्सिटी में लगाए थे थ्रू परमिशन। यूनिवर्सिटीज में कैमरास लगाए, हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा सेट है कि वो रियल टाइम में इतना डाटा सेट इकट्ठा कर रहा है कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसमें। और ये तलहा ही है जो कि मतलब आपको रियल टाइम में यहाँ पे नजर आएंगे। How many the user base is how huge? यूजर बहुत ज़्यादा Currently अभी कैमरास में जो आते रहते हैं हम उनके जस्ट फिलहाल रिकॉग्निशन हो गई है। अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी रिकॉग्निशन। I'm not concerned with that. It recognized Talha based on what features? It recognized Talha based on what features?
फेशियल फीचर्स कितनी बड़ी यूजर डेटाबेस है ऑलरेडी जिस पे तलहा फिल्टर हो रहा है सर वो तो थाउजेंड्स में इस वक्त रियल टाइम में? यू सेड PUCIT में लगे हुए हैं, या यू आर सेइंग मी कि वहाँ पे 5000 बच्चे में से वो आपको फिल्टर आउट करके दिखा रहा है? या एग्जैक्टली इट इज डूइंग दैट विद दैट इमेज क्वालिटी? या सर एक्चुअली हम सिर्फ फेस को नहीं करते हैं, हम डिफरेंट फीचर्स, उसके चलने के स्टाइल्स, उसके बॉडी जैसे जब हम ट्रेनिंग करते आई हैं। आस्क्ड यू द सेम थिंग, व्हाट फीचर्स? सर उसके चलने बॉडी फीचर्स, उसके जेस्चर्स, उसके जो क्लोथिंग है उसके थ्रू हम री-आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और मेन जो रिकग्निशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो उसके जेस्चर्स है, बॉडी जेस्चर्स है, और उसके फ्रेम बाय फ्रेम चलने का किसने style है। बताया था सिस्टम को पहली मरतबा कि ये तलहा है? हमने सब पहले डेटा सेट बनाते हैं ना, तो जितनी भी मेरी सारी की सारी फ्रेम बाय फ्रेम की पिक्चर्स यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, आप पहले हर बच्चे को उसके सामने से गुजार के बताते हैं कि ये था? नहीं, हमने ऐसी जगह पे जैसा कि आप देख रहे हैं गेट पे लगाया हुआ है, तो एक खास वक्त है जहाँ पे हमारी ट्रैफिक आती है बहुत ज़्यादा, तो उस रियल टाइम पे चलते रहते हैं कैमरास, और उस वक्त डाटा साथ साथ मेंटेन होता रहता है। आई गॉट इट। हाउ डू यू आइडेंटिफाई, हाउ डज द सिस्टम आइडेंटिफाई कि ये तलहा था? हाँ, ये हमें पर्सनली, ये तो डाटा सेट के लिए हमें लेबल हमें खुद देना पड़ता है कि ये तलहा है। वैसे बाय इस तक कितने बच्चे का लेवल मौजूद है इस वक्त? ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, लाइक 200 to 300 बच्चे, मतलब बच्चे बड़े टीचर्स वगैरह सब। आई वुड लेट फीफ जंप इन नाउ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो इसी के अराउंड है कि आपने कहा कि इसमें मशीन लर्निंग इन्वॉल्व है, राइट? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है मशीन लर्निंग की कि एक टाइम आएगा इसके लर्निंग फेज में कि जिसके बाद ये जो नए लोग आ रहे होंगे उनको खुद से आइडेंटिफाई करेगा कि ये बंदा पहले कभी नहीं आया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे कि वो आपको हर एक का डाटा डालना पड़ेगा? नहीं, एग्जैक्टली हम ये कह रहे हैं कि जो नया पर्सन है उसकी डाटा सेट साथ साथ बन जाए, एंड देन एडमिन को नोटिफाई करें कि ये बंदा था, अब मुझे बताएं कि ये ऑलरेडी था, अवेलेबल था या नहीं। अगर वो नया तो जाहिर सी बात हमें एक नया ऐड करना पड़ेगा, अदर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था तो इसका मतलब हमारे मॉडल में कुछ प्रॉब्लम है, देन हम फिर उसको रीट्रेन करते हैं अपने। आपका सिस्टम ये कैसे बताएगा? ये पहली चीज़ तो मुझे ये बताएं कि वो एक वक्त में कितने लोगों को रीड कर सकता है? सर डिपेंड करता है कैमरा क्वालिटी और कंप्यूटेशन पावर्स, जितने भी मतलब मैक्सिमम। एक्चुअली हम यूज़ करें योलो को एज अ पर्सन आइडेंटिफायर। अच्छा, आपने कितने के साथ टेस्ट किया इसको? हमने तो बस ऐसे ही, हमारी कुछ वक्त होते हैं जिस वक्त बहुत ज़्यादा पर्सन जाते हैं। दिखाता है वो ये फला लोग? नहीं, अभी सारों पे नहीं दिखाता क्योंकि सारों पे ऑलरेडी ट्रेनिंग हुआ। कुछ को दिखाता? मैंने बस अपने, जैसा कि हमने अपने बेसिक जिनके ज़्यादा फीचर्स हैं इनकन से, हमने उन पर ट्रेन किया, देन उसके यहाँ से फिलहाल है। अच्छा, लेट्स से कि जब आप इसको डाटा सेट आपका बड़ा हो जाएगा और आपने जो नया कोई बंदा आएगा उसको तो नहीं आपने कभी ट्रेन किया, ठीक है? अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, बिल्कुल कितनी देर के बाद, कितनी ट्रेनिंग के बाद, और इसकी सुपरवाइज्ड लर्निंग लग रही है मुझे, ठीक है ना, कितने अरसे के बाद जाके ये किसी नए बंदे को आइडेंटिफाई कर सकता है कि यार ये बंदा कभी नहीं आया पहले, और उसकी कितनी रिकॉर्डिंग के बाद ये बताएगा? जब पर्सन आ रहा है ना, जब जैसे पर्सन को नया आया है उसने आइडेंटिफाई नहीं किया, जब जैसे ही आइडेंटिफाई नहीं करते तो उसको हर फ्रेम के हिसाब से उसका डेटा सेट मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है? एंड देन अब आगे एडमिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो चाहे कि हाँ ये मेरा एग्जिस्टिंग बंदा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, देन वो हमें कोई ना कोई लेबल दे दे और बता दे कि हाँ इसको ट्रेन कर दो। देन हम ये कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनकी कंप्यूटेशन काफ़ी हाई होती है, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह की, तो उसके लिए GPU बेस्ड सिस्टम चाहिए। अब GPU बेस्ड सिस्टम बहुत हैवी हो जाता है, तो इसके लिए दो एस्पेक्ट होंगे ना, एक तो उसका लर्निंग का पार्ट है जो कि हैवी है, ठीक है, लेकिन जो उसका प्रेडिक्शन का पार्ट है वो तो लाइट वेट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर आपका डाटा सेट बन चुका है ऑलरेडी, तो प्रेडिक्शन में तो आपको इतनी कंप्यूटेशन की, लेकिन सर जब डेटाबेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर डेफिनेटली हमें प्रेडिक्शन में भी थोड़ा अच्छा चले, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपने शुरू में कहा कि हमने एल्गोरिदम को कस्टमाइज किया, उससे आपकी क्या मुराद है? कि आपने लाइब्रेरी खोल के उसका सोर्स कोड चेंज किया? एक्चुअली जैसा कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, लाइक योलो अगर मैं एग्जांपल दूं, इन्होंने अपने लाइक 1000 क्लासेस के लिए ट्रेन किया हुआ है पूरा का पूरा मॉडल, लेकिन अगर जस्ट लाइक मैं चाहता हूं कि किसी भी खास चीज़ के लिए, तो आपने इनपुट को कस्टमाइज किया है ना?
जो आप उसको मैंने input हाँ जी दें। अपना डेटा सेट देके उसके हाँ। वेट जो लर्न हुए हैं उन वेट्स को यूज करते हुए अपना उसको सो मॉडिफाई किया। आपने उसकी जो इनपुट है उसको Data set. कस्टमाइज इनपुट की है, बट द एल्गोरिथम इज द सेम, राइट? या एग्जैक्टली उसको मॉडिफाई किया है, उसको जस्ट एल्गोरिथम मॉडिफाई नहीं किया। नहीं किया। एल्गोरिथम भी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक हो। अब नाउ इस वक्त जो प्रोडक्शन हमने देखा है वो कौन सा कैमरा लगा हुआ है? हाइक विजन है और नेटवर्क है। As distributed computing, या what are you doing there? सर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में ये कर रहे हैं कि अपने जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल अपने लैब के कंप्यूटर्स हैं, हमें कंप्यूटेशन पावर मैक्सिमम चाहिए। लेवल पे जाके समझना चाह रहा हूँ, I understand what is ठीक है। You tell me what is that you developed for distributed computing? ये सर हम लोगों को रिक्वायर था जीपीयू, जो कि अभी हमें मिला नहीं है, तो हम लोगों ने इस वजह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की तरफ मूव किए हैं ताकि जो हमारी कंप्यूटेशन में टाइम ज़ाया हो रहा है। Asking what have you developed in terms of distributed computing? सर वी हैव डेवलप्ड द स्पार्क क्लस्टर्स। You have developed a Spark cluster. यस सर। फीड आती है कहाँ पे जाती है? सर अपाची स्पार्क का एक क्लस्टर बना दिया हम लोगों ने, फिर वहाँ पे हम लोग जिस तरह के वो कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो उसके बैक एंड पे हम लोग सीवी का फॉर एग्जांपल कोई कोड चला दिया हम लोगों ने, योलो का कोई कोड चला दिया, तो वहाँ पे वो कंप्यूटेशन होगी तो वो टाइम भी मिनिमम लेगी। डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है इसको, फीड को? क्लस्टर में कितने कंप्यूटर हैं? सर अभी क्लस्टर्स में हम लोगों ने फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस 2-3 कंप्यूटर्स के लिए काम किया है। हम लोग ये हैं कि हम लोग स्पार्क उन तीनों को यूज करता है? यस सर, अपने वर्कर्स के ऊपर काम बांट। आपने अपने लैपटॉप पे किया होगा? यस सर। स्पार्क को नोट्स डाली हुई हैं उसकी? यस सर। अच्छा। आपने बताया था कि थीफ आइडेंटिफाई आप करेंगे, तो अभी तो आप जस्ट उसका तलहा वो नेम आप बता रहे हो, तो अगर आपने कोई इतने सारे लोग हैं उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये है, तो कैसे करेंगे, कैसे इनपुट देंगे उसको, कोई पिक्चर उसको भेज देंगे? नहीं, एक्टिविटी रिकॉग्निशन के थ्रू हमें पता है, अब लेट से सिविल साइट है भाई, देन मुझे पता है कि एक्टिविटी उधर की किस टाइप की है, कि लाइक कोई मजदूर टाइप होंगे, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, अगर वो आइडल बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे अनडिजायर्ड एक्टिविटी हो रही है, तो एक्टिविटी अनडिजायर्ड एक्टिविटी को नोटिफाई करना कि ये अनडिजायर्ड एक्टिविटी यहाँ पे हैपनिंग हो रही है। That's a very interesting statement. On one side you are saying कि you have a set of features जिसको एनालाइज करके वो बता रहा है कि ये तला है। ऑन द अदर हैंड यू आर सेइंग मी कि एक बंदा आइडल बैठा है या सिगरेट पी रहा है, तो आप उसका बिहेवियर भी नोट कर रहे हैं। यस सर, एक्टिविटी हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट है। लाइक ऑफिस है, उसके लिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर बैठना एक एक्टिविटी सही वाली एक्टिविटी है, जबकि यही बैठना अगर मैं सिविल साइड पर चला जाऊँ तो ये वाली एक्टिविटी अनडिजायर्ड एक्टिविटी है। दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक तो आपने बता दिया कि आप किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कैसे करें, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि आप ये भी बताएंगे कि वो इंडिविजुअल क्या कर रहा है। yes, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको एज एन इनपुट उसमें पहले से रखनी पड़ेंगी? नहीं, हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बना रहे हैं। कस्टमाइज से मुराद, मेरी बात सुन लें पूरी, कि आप कस्टमाइज का मतलब यही है ना कि आप उसमें इनपुट करेंगे, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उनको किस तरह की इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप एक्टिविटीज़ उसमें फीड करेंगे और फिर वो उनके अगेंस्ट मैच करेगा कि ये बंदा ये वाला काम कर रहा है कि नहीं, ऐसे ही है। तो जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या लर्निंग वाला पार्ट क्या है? सर देखिए, इससे ये हमारा एक जनरलाइज सॉल्यूशन है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हैं, ठीक है। ये जो रिकग्निशन, ऑथराइज वॉकिंग, ये एक अलग मॉड्यूल है और उसके अलावा एक्टिविटी एक अलग मॉड्यूल है। जब हमारी ऐप लॉगिन होती है उसको मॉड्यूल्स लाइव स्ट्रीमिंग, एक्टिविटी डिक्लेरेशन, पर्सन आइडेंटिफिकेशन, इस तरह के उसे मॉड्यूल्स जिस भी चीज़ करता है उसको आगे शो होता है। अब बात करते हैं आपसे, तो आप बात कर रहे हैं कि जब एक्टिविटी लर्निंग के हवाले से हो गया, अब ये जितना जनरलाइज सोल्यूशन है इट कैन बी यूज इन एनी वेयर, इन एनी हॉस्पिटल, इन एनी ऑफिस, इन एनी अटेंडेंस। अब अटेंडेंस पे हमने तब इस तरह का लगाया था तो उसमें सिंपल है कि बंदा वॉक कर रहा है तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो गया। अब अगर हम एक्टिविटी पे जाए तो इसलिए इज जस्ट सिंपल पर्सन आइडेंटिफिकेशन के थ्रू वो वॉकिंग कर रहा है फ्रेम बाय फ्रेम और उसके थ्रू हमने काम किया। इसी तरह जो हमारा डाटा सेट होगा वो इस तरह ट्रेन हुआ होगा कि जब कोई पर्सन साइड पे होगा, लाइक मजदूर है, मजदूर नॉर्मली क्या होते हैं, वो यूं काम करते हैं या यूं जो झुके हुए होते हैं या इस तरह काम करेंगे, ऊपर होते हैं, उनको कोई ना कोई बॉडी पार्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट आइडल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह कोई थेफ्ट है, कोई आया, क्योंकि थेफ्ट हमेशा होता है, उसकी एक चीज होती है कि जो भी आता है वो एक तरह से देखता है पूरे सिनेरियो को, उसके बाद वो करता है, किसी भी पॉइंट पे वो आइडल जरूर होता है,
ठीक है, तो तब वो उसकी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करके फौरन ही जो है ना उसी कैमरा के थ्रू जो है ना उसको नोटिफाई So for every moment the frame is being analyzed and you label it as this person is into this activity set right now. Is that what you're doing? What is the percentage of false positives here? False positive means that you identified somebody to be doing something obnoxious which they were not. Have you looked at it? जैसे फिर ऐसे ही ना, जस्ट लाइक मैं पहले आपको बता रहा था कि अगर कोई बंदा नया आया एंड उसने कहा कि पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ और उसने एडमिन को कहा कि पर्सन अननोन आया, जबकि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था वो पर्सन, तो यानी कि मेरे पास ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ कमी है। देन फिर हम ये कर रहे हैं कि जैसे कि रात को मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मतलब फ्री होती हैं, लाइक सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं हम, जैसा कि अभी हमारी यूनिवर्सिटी में हम ऐसे कर रहे हैं कि रात को सिस्टम हमारे अवेलेबल होते हैं, फ्री होते हैं, देन हम उस वक्त मॉडल को रिट्रेन कर देते हैं उसको। और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब है? एंड्रॉइड एंड iOS दोनों एप्लीकेशन। When I log in, you give me a set of activities? Yes sir. लाइव स्ट्रीम और अच्छा, अब रियल ग्राउंड्स पे फॉर हाउ मेनी पीपल कैन यू शो अस? तलहा, आई लव्ड इट, बीइंग आइडेंटिफाइड, रैंडम यहाँ पे 20 बंदों पे हो जाएगा या ट्रेनिंग के लिए अब कहीं इनके डेटा सेट बनाने पड़ेंगे पहले से। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू क्रिएट अ डेटा सेट? कि उनकी मैक्सिमम ओरिएंटेशन, मतलब अगर हम गैदर कर लें जिस लिहाज से मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है। You are the one who developed the data set. कितनी रिकॉर्डिंग है, कितना डाटा चाहिए आपको? लाइक एक आध दफ़ा अगर हम देखें उसको कैमरे से गुजारते हैं, उसका डेटा सेट बना लेते हैं। और ये जो फीड थी इस पे आपने इंडिविजुअल को फीचर सेट पे किया था या फेशियल पे किया था? हाँ, ये सर पहले हम जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना मेनली फेशियल पे करें, लेकिन इसको कम बाकी बॉडी पार्ट्स को कम दे रहे हैं। मुझे फाइनल जवाब दें, पर्सन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड अपॉन फीचर है या फेस है? फेस है। facial features है, and you said 200 feature with this level of accuracy या feed, इस लेवल की फीड पे आप क्लासिफाई कर रहे हैं? सर इसमें तो हमने ना एक तो हमारे पास कैमरे की क्वालिटी आप जैसे देखें बहुत तेजी है, तो इसलिए हमने अपने डेटा सेट को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया हुआ है अपने डेटा सेट पे, ताकि ये काम कर सके यहाँ पे अच्छे डेमो के लिए। वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, या बहुत काम यहाँ में उसको कुछ ट्रेन करना पड़ेगा। आई नीड टू नो कि हमने उसको 5 मिनट के लिए ट्रेन किया, हमने उसको 2 मिनट के लिए ट्रेन किया, अब 10 मिनट के बाद वो इतना बताने लग जाता है कि वो चलने वाला है, 20 मिनट के बाद ये बताने लग जाता है कि ये भागेगा, तो भी हमें पता चल जाएगा। इस तरह के थोड़े से सॉलिड आंसर्स चाहिए। सर सिंपली इज दैट कि ये सारी चीजें होती है ना डेटा डिपेंडेंट होती हैं। आपसे बात करें ना यहाँ पे 20 लोगों को, आप 20 लोगों को लाएं, ठीक है, उनका हम डेटा सेट जब लेंगे उसके बाद एक कंप्यूटेशन पावर चलेगी, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि डीप लर्निंग के जो एल्गोरिथम हो सकते हैं वो ट्रेनिंग टाइम पे लेते होते हैं। तो आप I'm not talking about the algorithms time, I'm not talking about how long it's going to take to train the model, I'm talking about how long you need to record them. How long of the feed record all the features. ठीक है, अगर मैं आपको कितना टाइम चाहिए? सर अगर आप करेंटली रियल टाइम में बात करें तो हमारे पास जो इस टाइम 3 कैमराज हैं, और अगर आपने अच्छे मतलब पिछले जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, जितने भी मतलब हम लोगों ने रिसर्च किया, उसमें ये होता है कि अगर आपने 3D रिसर्च करना है तो आपको 6 कैमराज की ज़रूरत है। पर्सन यहाँ मूव करे, यहाँ मूव करे, उसके थ्रू जो है ना वो इजीली जो है ना कर सकता है उतने मिनिमम 6, लेकिन उतने हमारे पास अभी नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 कैमराज हैं। इसकी वजह से ना हमें जितना ज़्यादा इनका डाटा सेट मिलेगा हमारे लिए उतना अच्छा, और उतना 200 घंटे की वीडियो चाहिए, 25,000 घंटे की वीडियो चाहिए। से ए नंबर, देयर हैज टू बी अ नंबर बेस्ड ऑन व्हिच यू से कि यस वी आर फाइन। वीडियो पे से डिपेंड नहीं करता, ये हमारे पास ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, जिस लिहाज से हमने उसको ट्रेन करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी डेफिनेटली वो सही है। ठीक है, फिक्स कर लेना चीज़ों को, सही है। देन हाउ मच टाइम डू यू नीड टू रिकॉर्ड इट, और फीचर्स कितना टाइम चाहिए? Let me tell you why we are asking this. अब जरा एक बात सुन लीजिएगा, listen to me. You did not tweak the algorithm. The algorithm is out there. Somebody else has already developed the model. You tweak the input. The make or mar thing for this whole product is that training part. कि कितने ज़्यादा यूजर्स आएंगे तो वो फॉल्स पॉजिटिव देना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दैट ब्रिंग्स द होल थिंग डाउन कि उसने फॉल्स पॉजिटिव दे दिया। एंड हाउ मच टाइम डज इट रिक्वायर
टू एक्चुअली ट्रेन एन इंडिविजुअल। यही दो चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर ये चलेगा या नहीं चलेगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी जस्ट वांट टू क्लासिफाई। डू यू हैव द नंबर? अपेरेंटली ये डिस्कशन जितनी लॉन्गर हो रही है, इट सीम्स टू अस के वी आर एट एन इम्पास एंड नाइदर ऑफ अस इज रीचिंग टू ए कंक्लूजन। सो इफ़ यू हैव ए नंबर, थ्रो इट टू अस। आइडियल कंडीशन दे दी कि आपने जिस तरह कैमरे लगाने आप लगाएं, 6 कैमराज लगाने लगा दें। हाउ मैनी आवर्स ऑफ द फीड वुड बी रिक्वायर्ड नाउ? आप उसको कहते हैं यूं करके खड़ा हो जाओ, वो खड़ा हो जाता है, वो आपकी बात भी मान रहा है। अब क्या चाहिए? हाउ मच? जस्ट वो हमारे कैमरा से गुजर जाए एक दफ़ा, 2 दफ़ा या 2-3 दफ़ा बस गुजर जाए, हमारे पास पिक्चर्स इतनी आ जाएंगी कि हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी डेटा सेट हमने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल क्वेश्चंस, आपका बिजनेस मॉडल क्या है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप हैं इन टच अदर देन PUCIT के जिधर आप ये इसको कर सकते हैं? पोटेंशियल कस्टमर आपने है कोई? सर हमारे कस्टमर्स इस परस्पेक्शन से हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा अगर हम ये ऐप को देखें तो ये कस्टम ऐप है, ये कहीं पे भी डिप्लॉय की जा सकती है, लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, मैनी इंस्टीट्यूट्स, मॉल्स एटसेट्रा। अच्छा, आपके कोई है पैनल के ऊपर या किसी के साथ डिस्कशन है भी कि नहीं? वो हम बताते हैं आपको। वी हैव मैं टॉक कर रहा हूँ एक क्लाइंट के साथ ऑफ चेक रिपब्लिक, जिसमें 1000 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करना है इसके थ्रू, और फिलहाल जस्ट रिकग्निशन वो जस्ट मांग रहे हैं, तो देन उनके लिए मैं करना चाह रहा हूँ ये चीज़। एंड दूसरा एक और चीज़ है शॉपिंग मॉल्स के लिए, लाइक स्टोर है, क्योंकि CCTV कैमराज हैं बहुत सारी, जितने भी हम काम करवा सकते हैं, मॉड्यूल्स बना सकते हैं, तो उसमें यह है कि हम किसी भी शॉप में ओरिएंटेशन है, शर्ट्स लाइक लगी हुई शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं। ठीक है, ओके। आपके क्वेश्चन था कि आपकी ऑडियंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसा ही है, पब्लिक नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशन कोई है कि नहीं है अदर देन PUCIT? फिलहाल मैंने आपको जैसे बताया कि चेक रिपब्लिक में इन अ मंथ और 2 मैक्सिमम हम वहाँ पे डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ठीक है, इन डिस्कशन सही, ठीक है। I would actually want to see you after that. Yes, sir. After the whole thing is done. Thank you. Thank you. Wow, I mean, it was a very good project, right? Yes, I would like to get recognized in millions of people, eh? I mean, that is actually your wish. So, I mean, Nayab, I mean, जो आज का, what actually in the inspiration of today's event, what do you want to be? I mean, क्या बनाना चाहोगी Microsoft के लिए? Well, I was supposed to be a judge. Come on, you can't be a judge. Why? Why can't I be I mean, judge? have you seen our judge? They have done a lot of schooling. They know actually everything. I mean, you haven't even done your bachelor's yet. How are you supposed to? I disagree. I can be a judge. I would definitely disagree with that again. You can't be the judge. There's actually a lot of schooling, right? Okay, fine. So anyway, we have our Next team. with us now. This is the team name is Maverick, right? And from which university you are? So they're actually from the University of Agriculture, Faisabad, right? So over to you guys and best of luck. Let's see what they have to say. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक शॉर्ट डेमो है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हमारे उसके सोल्यूशन का एक शॉर्ट डेमो है। पहले Russia controls the world's biggest market of counterfeit drugs. Until recently, 12% of all medicines in the country were thought fake. The crackdown may have begun at home. Fake Russian drugs continue to travel far and wide, smuggled abroad to Europe and the US. The World Health Organization now believes that 25% of all drugs consumed in developing countries could be substandard.
footprint across China. But China's second largest market is likely capacity to produce some vaccines for babies. Only 10 draft factors responsible for regulating the sale, purchase, manufacturing, and licensing of medicines in Lahore. And they are too less for the job. They were only designated for the sales among सर तो Can we go 15 seconds back, 10 seconds back? The Power BI one. यहाँ रोकिएगा जरा। जी सर। ठीक ठीक है जी, चला। सर तो सर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है काउंटरफिट मेडिसिन एंड पुअर मेडिसिन क्वालिटी कंट्रोल। तो जैसे अभी डेमो में दिखाया कि बहुत सारे केसेस हैं पिछले सालों में आए कि पाकिस्तान में हमारी 2012 में एक सिरप कंटामिनेटेड सिरप टाइलन की वजह से 60 पीपल्स की डेथ हो गई 2 सिटीज़ में। फिर सेम मेडिसिन 2013 में 100 people 44 Can you go forward to the solution part? Problem statement was very well catered. Solution क्या था? Solution आपका क्या था? उस पे आते हैं। सोल्यूशन स्टेटमेंट है, हम एक स्मार्टफोन ऐप एंड्रॉइड ऐप प्रेजेंट कर रहे हैं मैवरिक। सो इट इज़ बेस्ड ऑन NFC स्कैनिंग कि हमारे मोबाइल्स में मौजूदा मोबाइल में तकरीबन सभी मोबाइल में NFC स्कैनर्स मौजूद हैं। ठीक है। हमारी जो मेडिसिन आ रही हैं नई उनमें NFC टैग्स और चिप्स एम्बेड हुई होंगी जो कि उस मेडिसिन से मुतल्लिक डाटा कंटेन कर रही होंगी। डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा ताकि इन केस ऑफ अगर वो कॉपी की जाए तब भी वो प्रिवेंट हो सके कि वो फेक नहीं किया जा सकता। कि हमारे NFC स्कैन जो चिप्स हैं दे आर हाईली प्रोटेक्टेड, एक तो यूनिक होती हैं। फिर हर बॉक्स में आप वो चिप रखेंगे जो मेडिसिन बॉक्स होगा उसमें। That is why स्टिकर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं उसके ऊपर। That is why he tapped the phone on the top of the। ठीक है ठीक है ठीक। तो वर्किंग ये है कि पहले हम अपना NFC स्कैन टैप करेंगे, ऑफलाइन वर्किंग होगा। NFC के जो चिप्स हैं जी, have you played with those? yes sir, I have, the app is working. There are please continue। Why NFC? बारकोड क्यों नहीं? सर NFC में हमारे पास लोकल स्टोरेज की डाटा की ऑप्शन है। फिर उसकी जो टैग IDs हैं वो टोटली यूनिक होती हैं कि आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, उस सेम टैग को क्रिएट नहीं किया जा सकता। बारकोड यूनिक नहीं होता? जी सर, बारकोड यूनिक नहीं होता। नहीं, बारकोड कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, कॉपी करके सेम बारकोड में 10 और मेडिसिन पे लगा के दे सकते, तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन। There are 3 types of NFC, कौन सी यूज कर रहे हो? 3 से भी ज्यादा है। There is a huge line। हम NFC RFID टैग्स यूज कर रहे हैं। I got it। उसमें भी लाइन है कितने KB का डाटा सेव हो सकता है। Can I see the chip? Is it the circular one? Circular है? Actually,
I don't have stickers that are circular. ठीक है, you can just order them online. Yes. ठीक है, We will use stickers that are circular form. ठीक है. तो ये इसकी कॉस्ट क्या? सर अगर मैस प्रोडक्शन में क्रिएट की जाए तो अबाउट 10 रुपीज़ पर टैग. And since you have brought it, yes. So I believe I can see it on the phone, right? Yes. आते जरा. Yes. Can you? इधर रखते हैं. अच्छा, सही. टैग राइटर कौन सा यूज़ किया? स्मार्टफोन का? स्मार्टफोन का अपना दिया और खुद कस्टम बनाया उसका? ठीक है, ठीक है. कोई मसला नहीं. आई जस्ट वांट टू सी द डिस्प्ले ऑफ इट. सामान ऑटोमेटिकली ऐप स्टार्ट हो गई. Absolutely understandable. Absolutely understandable. तो इसमें ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन भी हम कर रहे हैं इसकी सीरियल की बेस पे. इसमें जो टैग्स है वो उसमें डाटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में. सो आप मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे? टैग इसकी सील में होगा. सही, टैग इसकी सीरियल में. ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिंस ये मेडिकल एप्लीकेशन है तो इज इट फॉर प्रॉफिट? No, sir. It's for public service, free of cost. We will provide free of cost public service. This app will be launched on Play Store, and the data will be provided to us by the companies about their medicine. The data will be uploaded to the databases, and we will collaborate with them for online verification. For offline verification, the app works well with the serial key combination and the. तो अभी तक आपने किसी प्रोवाइडर से बात की है? No, sir. Okay. आपको करनी चाहिए to gauge their interest. If they even want this or not. एटलीस्ट कोई छोटे मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप कर सकते हैं टच इस, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट तो डेवलप है. मतलब इफ़ यू आर क्वालिफाइंग फॉर इमेजिन कप, इफ़ तो उसमें यह है कि आपको कुछ बैक करने के लिए कोई सॉलिड ग्राउंड चाहिए होंगे. तो उस पर एक तो आप किसी से बात करें, ठीक है, उनका इंटरेस्ट लें, ब्रिंग देम टू द पैनल और उनकी डिवाइसेस को चेक करें, थोड़ा डेटा सेट बढ़ाएं. ठीक है ना, रेंज बढ़ाएं थोड़ी सी डिवाइसेस की, एक से ज़्यादा टैग्स प्रोड्यूस करें और उन पे लगा के वो उसको टैग्स. ये था कि इस टाइम मेरे पास और फॉर्म में नहीं थे, वरना और टैग्स पे हमने ट्राई किया हुआ है, वो इस फॉर्म में नहीं थे मेरे पास. गेट समबडी फ्रॉम द कपल ऑफ क्वेश्चन. आपने कुछ पूछना? एक क्वेश्चन है मेरा, मैं भूल गया. चलिए आप पूछते. सॉरी, कपल ऑफ क्वेश्चंस है. यस सर. टैग रीड हो जाएगा? टैग कैन आई रीड दिस टैग फ्रॉम सम अदर सोर्स? हाँ, ये एक प्राइवेसी का इशू बन रहा है. कैन आई रेप्लिकेट दिस टैग? नो. क्यों नहीं? आपका मतलब यानी टैग कॉपी करके किसी और टैग में डाटा रख दिया, तो बिल्कुल टैग रीड हो सकता है, लेकिन इसमें हमने अपनी जो हमारा टैग के अंदर डाटा पड़ा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा. ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन में भी जब हम डाटा पिक करेंगे उसको डिक्रिप्ट करके उसकी सीरियल की टैग से हम व्हेन आई एम गोना यूज ए टैग रीडर, तो मैं इसका जितना डाटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में एज इट इज रीड कर लूँगा. यस. एंड माई वर्क इज डन. आई वुड पुट इट इन वन ऑफ द मेडिसिन्स जो मैंने फोर्क की हुई है. सो द होल थिंग काउंटरफिट जो करना है वो मैंने, और आई वांट एन आंसर बेसिकली, मैं उसको सुनना चाह रहा हूँ. जी सर, यही है हमने सीरियल की और जो हमारा टैग है, यानी स्पेसिफिक जो अब हम एडवाइस करें कि NXP G203 टैग यूज़ किया जाए कि उसकी आईडी की यूनिक. अच्छा, लेट मी फ्लिप द कॉइन हियर. उसकी बेस सीरियल की, maybe I'm not getting something because you are speaking of serial key. जी. Where is the serial key? टैग की अपनी, ठीक है, वो फिर मैं रीड कर लूँगा. पे सेव होगी. एक तो जो हमारे पास एनक्रिप्टेड डाटा है उसमें, और जो टैग है उसकी अपनी सीरियल की, हम दोनों चीज़ें गेट कर रहे हैं. एनक्रिप्टेड डाटा आप मुझसे ले लेते हैं, लेकिन आप जिस टैग में रखेंगे उसकी सीरियल की वो नहीं होगी जो एनक्रिप्टेड डाटा में होगी. हम इसको ऑफलाइन पहले चेक कर रहे हैं कि दोनों की सीरियल की मैच कर रही है या नहीं. उस बेस पे बता रहे हैं कि टैग वो है जो कंपनी की तरफ से है, ये मेडिसिन वो है जो कंपनी ने टैग की है या नहीं. उसके मैं बाद सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. क्या मैं टैग को रीड प्रोटेक्शन में ला सकता हूँ? जी ला सकते हैं.
कैन आई इसको हम अनरीडेबल कर सकते हैं? कर सकते हैं। यू हैव सीन इट। मोंगोडीबी क्यों? लुक्स गुड एज एन आइकन और व्हाट? एक्चुअली यूजिंग ठीक है। पावर BI फ्री यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है? सर फिलहाल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स के साथ फ्री साइन किया। ठीक है। आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं? डाटा एनालिसिस के लिए कि इसकी बेस पे ये तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो गई हमारी जिसमें मेडिसिन ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। इसके बाद है ऑनलाइन का ऑप्शन जिसमें उसका स्टेटस शो हो रहा है कि अब जो प्रीवियस अपटालन सिरप का कि वो बैन हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी कि वो बैन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये ऑनलाइन वो फिर हमें स्टेटस बताएगा कि इसके अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू आया हुआ है या कंपनीज ने कोई नई चीज़ इसके बारे में लिखी है तो पता चल जाएगा। फिर जो इसकी बेस पे हमारे पास डाटा कलेक्ट हो रहा है कि अब पावर BI में हम वो डाटा इकट्ठा करें कि कौन से एरिया में कौन सी मेडिसिन कितनी कंज्यूम हो रही है। एरिया से मुराद आपकी आप सिटीज, कंट्रीज, रीजन, उसका एरिया निकालेंगे, लोकेशन कहाँ से निकालेंगे? उसके फ़ोन से या टैग से? के लिए अब जब मैंने अभी स्टार्ट किया फिलहाल ऑनलाइन पे नहीं था, मेरा नेट ऑफ था। अगर मैं नेट ऑन करता हूँ तो पहले मुझे अपने एज्यूर माइक्रोसॉफ्ट के साथ अकाउंट के साथ साइन इन करना पड़ेगा। उसकी बेस पर लोकेशन फिर मेरे पास आ जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोकेशन फ़ोन की है या टैग में डाली? फ़ोन की है। फ़ोन की लोकेशन, करंट लोकेशन जहाँ टैग स्कैन किया जाएगा वहाँ गेट करेगा कि फ़ोन ने कभी टैग स्कैन किया तो फिर लोकेशन एज्यूर पे जाएगा। अच्छा, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक चीज़ थी कि कुछ मेडिसिन बैंड हो गई हैं या वो नहीं है हेल्थ हैजर्ड की वजह से वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो उसके लिए कोई सॉर्ट ऑफ आपको अलर्ट या नोटिफिकेशन आपकी ऐप में आ रहा है कि ये वाली मेडिसिन जो है, क्योंकि हर एकदम तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा और आपकी लोग अगर ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई नोटिफिकेशन आप सॉर्ट ऑफ फीचर दे रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं कि ये वाली मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए, अपडेट्स इस किस्म की कुछ होगी? इसके साथ इसका फीचर भी डाल रहे हैं कि अगर कोई मेडिसिन बैन हो जाती है तो पहले हमें पता चलेगा, हम फ़ौरन नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, उसके बाद हम पीछे बैकएंड पे चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा जब यूज़र कोई फेक मेडिसिन चेक करते हैं उसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो हमें भी नोटिफिकेशन आएगा कि ये इस टैग इसका फेक स्कैन किया गया है इस लोकेशन पे, कि हमें लोकेशन गेट करिए, बाद में अगर हम चाहें तो आगे इसमें प्रोसेस की जा सकती है। तो आप यूज़र को पहले ही बता देंगे कि एप्लीकेशन बैन हुई है या जब वो स्कैन करेगा उस वक्त आप बताएंगे कि तेरे बैन है? अभी जो वर्किंग है उसमें उसी वक्त पता चल सकता है, पर हम बीच में कम्युनिटी डाल रहे हैं कि साथ साथ न्यूज़ आई रहे कि ये मेडिसिन बैन हो चुकी है या ये नई चीज़ आई है, गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे ये थ्रेट किया है। ठीक है, एक तो ये कि आपने कोई मैन्युफैक्चरर जो है आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है, कोई डॉक्टर वगैरह पैनल के ऊपर आपके कोई हैं ऑन बोर्ड इसके ऊपर जो मेडिसिन को पर्टिकुलर देखते हो? नहीं, पर्टिकुलरली तो नहीं कह सकता, पर डॉक्टर हैं मशवरे को। व्हाट इज योर करके इस चीज़ पे हमने काम शुरू किया था। व्हाट इज योर टीम डिस्ट्रीब्यूशन जो बाकी दो लोग हैं? आई एम कोड डेवलपर, टीम लीडर, डेवलपर, शी इज अ डिजाइनर। सॉरी, डिजाइनर। और आप इंटरफेस डिज़ाइन किया आपने? एंड्रॉइड डेवलपर। और RFID पे किसने काम किया? आपने किया, और आपने एंड्रॉइड ऐप पे काम किया। ठीक सही। गाइस थैंक यू। थैंक यू। इफ यू कैन वेट, मेरे से मिल लेना। यस, थैंक यू। A very good project so far. Thank you so much, team. That was an amazing project. Very good project, right? Yes, it was actually. Now, I think we should probably interact with the judges. yes, we should. So, if it's actually you now, we would definitely ask what is actually your "this is it" project category. First of all, it needs to fix a problem. ठीक है। सेकेंडली वो प्रॉब्लम बिग इनफ होनी चाहिए कि उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लोगों पे हो। तीसरा सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा सादा सा होना चाहिए, उसमें बज़वर्ड्स जितने मर्जी डाल लें, लेकिन अगर वो कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चौथी ये चीज़ कि आपने उसको कितना बनाया हुआ है ऑलरेडी। सो इफ़ यू आर जस्ट कमिंग इन एंड टेलिंग अस कि स्लाइड होंगे ऊपर, The simplest the we don't have a solution, demo. the more relevant it is. Very hard for us to believe you, right? So all of the people who brought their demos with them have advantages over the others जिनकी presentation बेशक अच्छी थी but they don't have a demo. So if they are listening to us and अगर वो दोबारा कहीं participate करें तो कोशिश करें कि बेशक वो ना भी चलता हो ला के रख दें, so that we actually can see